Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's lecture number 5 chapter number 2, that is solving a biological problem. In previous lecture we study about the steps to solve the biological problem. So my question is why we perform experiments. And all of you know that experiments are performed to check the validity of the hypothesis. कि जो हम hypothesis बनाते हैं अपनी problem को solve करने के लिए, उसको check करने के लिए, उसकी validity को check करने के लिए कि either it is true or false, we perform experiments. So uh, uh, today's topic is related to the experiment. And then after when we test a hypothesis one time and then again and again and it never rejected, then it becomes the theory, law and principle. So today's topic is theory, law and principle, in which when one hypothesis is tested again and again and that hypothesis is never rejected but it always accepted by the scientists or biologists, then it becomes the theory. कि क्या है, जो हमने एक hypothesis किसी problem के लिए बनाई है उसको हमने एक दफ़ा टेस्ट किया, ठीक है, वो क्या हुई, एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, अगेन उसको टेस्ट किया, अगेन क्या हो गई, वो एक्सेप्ट होगी एंड इट नेवर रिजेक्टेड, तो क्या हुआ, इट बिकम्स अ थ्योरी. तो वो क्या फर्दर जो हाइपोथेसिस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है, जब वो बार बार टेस्ट करने के बावजूद रिजेक्ट ना हो रही हो. Next is the law and principle. So the productive theory that becomes by the again and again testing of hypothesis undergo again testing, and theory survives and it is also supported by the experiments, then it becomes the law or principle. कि क्या है कि जो हमारे पास थ्योरी आई है जो कि हाइपोथेसिस की अगेन एंड अगेन टेस्टिंग के बाद आई है थ्योरी, अब क्या है उस थ्योरी को हम फर्दर टेस्ट करते हैं, ठीक है, और वो फर्दर थ्योरी क्या करती है, सर्वाइव करती है, और उस थ्योरी को हम सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से. क्यों, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं उस थ्योरी को. तो क्या है कि वो जो थ्योरी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लॉ एंड प्रिंसिपल में. एंड देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ लॉ and principle. Number one is Hardy-Weinberg law and number two is Mendel's law of inheritance. Next is the diagram. Firstly, we have the biological problem. We recognize the biological problem and in second step we perform observation, and observations are made by using your five senses and by using of brain. And simply in observation we observe the things to try, and we don't try to explain anything. We don't explain the observations. And next third step is the hypothesis, in which we think about the problem and make a sense. And then next is the deduction. In deduction we use the two words, that is if and then. And next we perform experiments to check the validity of the hypothesis, and in experiments we use two groups. Number one is experimental group and number two is control group. After experiments we have some result and summarization of result will occur, and if the result of experiment is not proven, so again observation will done, and but if the summarization of result is proved, then we will form the report the result, and after result it becomes the theory by further testing, and then when theory further testing and it is never rejected, then it becomes the law or principle. कि क्या है कि सबसे पहले हमारे पास स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, जैसे ही हमारे पास प्रॉब्लम आती है उसके सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन का. ऑब्जर्वेशन वही जो है वो हम यूज़ कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग आवर फाइव सेंसेस. देन थर्ड स्टेप इज़ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, सिंपल एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं करते. देन फोर्थ स्टेप इज़ डिडक्शन. डिडक्शन में हम बच्चे हाइपोथेसिस से बना रहे हैं और इसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं इफ़ एंड देन आफ्टर डिडक्शन वी मेड एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द वैलिडिटी, टू चेक दैट इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स. जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं. और एक्सपेरिमेंट्स के लिए दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप. ओके, एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी विल ड्रॉ सम रिजल्ट्स एंड देन समराइजेशन ऑफ रिजल्ट अकर. अब वो जो रिजल्ट है वो दो तरह का हो सकता है, ठीक है. वो क्या है कि वो या तो जो
रिजल्ट है वो सही होगा या वो क्या होगा, गलत होगा। अगर तो रिजल्ट गलत होगा, इफ नॉट प्रूवन, तो क्या है वो अगेन फर्दर जो है हम ऑब्जर्वेशन वाले स्टेप पे चले जाएंगे, ठीक है। और अगेन जो है वो न्यू हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, मीन्स के जो पहले से हाइपोथेसिस हमने क्रिएट की हुई थी डेट प्रूव्स फॉल्स, सो वी हैव टू मेड अवर न्यू हाइपोथेसिस एंड देन वी विल अगर तो हमारे पास क्या है कि वो अब जो हमने रिजल्ट आया है हमारे पास, ठीक है, वो उसमें हमारी रिजल्ट जो है वो उसको सपोर्ट करिए हाइपोथेसिस को, हमारी हाइपोथेसिस जो है वो प्रूफ साबित हो गई है, ठीक है। तो हम रिजल्ट समराइज करके अब उस रिजल्ट के ऊपर क्या होगा, फर्दर टेस्टिंग होगी। फर्दर टेस्टिंग अगर उसी रिजल्ट की होती है तो क्या होता है कि वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है, ठीक है। और थ्योरी की जब फर्दर टेस्टिंग होती है तो वो क्या बन जाती है, लॉ और प्रिंसिपल। Next topic is data organization and data analysis. Data organization and data analysis are also very important in biological method, and there is a definition of data which is important short question. Data can be defined as the information such as names, dates or values made from observation and experiments. कि जो observations और experiments हैं, ठीक है, वहाँ से हमारे पास कुछ information आती है, ठीक है। वो information हमारे पास क्या है, data। और वो information किसी भी तरह की हो सकती है, वो नेम्स भी हो सकती हैं, वो डेट्स भी हो सकती हैं और वो वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज द डेटा ऑर्गेनाइजेशन। In order to formulate and then to test hypothesis, scientists collect and organize data. बच्चे डेटा ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डेटा आ गया है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करना है किसी खास मेथड के थ्रू, ठीक है। और उसकी जो हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने बेसिकली डेटा की कलेक्शन कर रहे हैं कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस है, ये जो प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने डाटा कलेक्ट किया है वो उसका जो मेथड है कलेक्शन का वो कौन सा है, ठीक है। कि कलेक्शन मेथड के ऊपर डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी। अगर तो आपने जैसे कि कलेक्शन मेथड ऐसा भी हो सकता है कि आपने डाटा खुद से किया है कलेक्ट, ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ने डाटा जो है किसी और रीजन से मेल किया हो, या आपका जो डाटा है वो आपके किसी फ्रेंड ने या कोलीग ने जो है वो इकट्ठा किया हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि डाटा कलेक्शन की डिफरेंट मेथड्स हैं, और डाटा कलेक्शन मेथड जो है वो इंश्योर करता है आपकी क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट को। नेक्स्ट इज डाटा। डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन दीज 5 फॉर्म्स: ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट, मैप्स एंड डायग्राम्स। ग्राफिक्स में क्या, सिंपली वो जो डायग्राम से जो है ना डाटा शो किया जाता है। टेबल्स एज ऑल ऑफ यू नो, एंड फ्लो चार्ट जिसमें हम एक सीक्वेंस से एरो यूज़ करते हैं और एक सीक्वेंस से चाह रहे होते हैं। मैप्स एंड डायग्राम्स। Next is the data analysis. Data analysis is also very important, and it is drawn by using the statistics. Statistics बच्चे एक ऐप बच्चे एक सब्जेक्ट है, ये भी एक जैसे मैथ्स है ना उसी तरह, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो में क्या होता है, हम क्वोशिएंट यूज़ करते हैं, मीन्स के ए डिवीजन बी, और जो प्रोपोर्शन है उसके लिए हम साइन यूज़ करते हैं इक्वालिटी का। Ratio, we when a relation between two numbers a and b is expressed in terms of quotient a divided by b, it is called the ratio of one number to other. This is the definition, and ratio is expressed by आइदर डिवीजन और बाय कॉलन, कि इसके लिए हम 2 नंबर्स के दरमियान में या तो डिवीजन यूज़ करते हैं या फिर कॉलन का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कोई भी 2 रेशियोज़ के 2 नंबर्स के दरमियान होता है। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पेशेंट्स, सो द रेशियो विल बी 1:3। कि क्या है कि 50 हमारे पास मलेरियल पेशेंट्स हैं और हमारे पास 150 नॉर्मल पर्सन। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है डेट इज 1:3। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स टू जॉइन 2 इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। कि जो हमने पीछे रेशियो पढ़ी है, ठीक है, उन 2 रेशियोज को हम क्या करते हैं, इक्वालिटी के साइन के साथ जो है वो डिनोट करते हैं, एंड दिस इज प्रोपोर्शन। एंड फॉर एग्जांपल A:B इज इक्वल टू C:D, कि एक रेशियो A:B है और दूसरी हमारे पास क्या है, C:D। तो ये हमारे पास 2 रेशियो जो आ रही हैं उनके दरमियान में जो इक्वालिटी का साइन यूज़ करके हम 2 रेशियोज़ को जो है ज्वाइन करते हैं, दिस इज़ नॉन एज प्रोपोर्शन। एंड दिस प्रोपोर्शन में आल्सो भी एक्सप्रेस, बच्चे इसको हम इज इक्वल टू के साइन से भी शो कर सकते हैं और जो हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन है उससे भी शो कर सकते हैं। इन प्रोपोर्शन साइन वी यूज़ 4 डॉट्स।
Next is the diagram and example when there three values in a proportion or none the fourth one is calculated. बच्चे रेशियो में तो हम सिंपली हमारे पास वैल्यूज गिवन होती है और हम उसकी रेशियो निकाल लेते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन में ऐसा होता है कि हमारे पास तीन वैल्यूज गिवन है, ठीक है, तो जो हमारे पास फोर्थ वैल्यू है उसको हमने फाइंड आउट खुद से करना होता है, वो एक्स होती है. फॉर एग्जाम्पल अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउ इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट हेल्दी पर्सन स्पैरोज. कि बायोलॉजिस्ट ने कैलकुलेट किया कि उसने क्या किया, 11 सॉरी 100 हेल्दी स्पैरोज थी, ठीक है, उसको अलाउ करवाया कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो को कि वो इन हेल्दी 100 हेल्दी स्पैरोज को बाइट करे. इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट ही नोटेड दैन व्हेन ही अलाउड मॉस्किटो टू बाइट 20 स्पैरोज 14 ऑफ देम गॉट मलेरिया. और प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था कि 20 हेल्दी स्पैरोज थी, उनमें से उनको उसने बाइट करवाया था, जिनमें से जो 14 थे उनको मलेरिया काज हुआ था और जो 6 थे उनको मलेरिया काज नहीं हुआ था. नाउ ही यूजेस द प्रोपोर्शन. तो अब हम प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे. सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को एग्जांपल को समझिए कि हमारे पास 100 हेल्दी स्पैरोज हैं, ठीक है, उनको बाइट किया है इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने. तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने मॉस्किटोज जो है स्पैरोज जो हैं उनको मलेरिया काज हुआ है, ठीक है. लेकिन जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था, 20 स्पैरोज थी, उनमें से 14 को क्या हो गया था, मलेरिया हो गया. तो ठीक है, इसमें एक हमारे पास वैल्यू एक्स है और बाकी की तीन वैल्यूज हमारे पास गिवन है, ठीक है, डेट इज 100 20 एंड 14. सो फर्स्ट रेशियो इज जो हमारे पास स्पैरोज की है 14:20 कि क्या मतलब है, 14 जो स्पैरोज थी आउट ऑफ 20 दे गॉट मलेरिया. एंड सेकेंड रेशियो इज x/100. हमारे पास 100 हेल्दी स्पैरोज हैं, हमने उसमें से फाइंड आउट करना है कि कितनी उनमें से जो है वो हेल्दी स्पैरोज को मलेरिया काज हुआ था, ठीक है. तो डेट इज द अननोन वैल्यू वी यूज x फॉर अननोन वैल्यूज एंड द प्रोपोर्शन विल बी 14:20 प्रोपोर्शन x/100. देन हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू के साइन से आप जो है वो उसको प्रोपोर्शन के साइन को रिमूव कर सकते हैं. एंड 14 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 20 एंड इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 14. x एक साइड पे रहता है तो हम दूसरी जो 20 की वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, ठीक है, और वो डिवाइड हो जाएगी. 100 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 70. सो द आंसर इज 70 healthy sparrows got the malaria. Let's summarize our lecture that what we have studied today. We have studied the law and theory and law and principle. What is theory? When hypothesis is again and again tested and never rejected, it becomes theory. And what is law or principle? The productive theory is when undergo further testing and theory survives by and exported by the experiments, then it becomes the law or principle. Next is there are two examples of law, Hardy-Weinberg law and Mendel's law of inheritance. And this is the diagram. Firstly we use the 5 steps to solve the biological problem. First biological problem, then observation, then hypothesis, then deduction, then experiments, and then summarization of result. If the result is not proven, then we again back towards the observation and made new observations and then hypothesis. But if the result is proved, then we report the result, then further undergo testing and it becomes theory, and then further undergo testing, and if this theory is survived, then it becomes the law or principle. Next is data organization and data analysis. Data organization and data analysis are very important steps, and data is defined as the information such as names, dates, or values made from observation and experimentations. And data organization is the method that how we scientists is collecting the data, and the data collection method ensures the quality of the experiment. Next is data is organized in 5 ways: graphics, tables, flowchart, maps, and diagrams. And data analysis is done by two methods, ratio and proportion. In ratio we use quotient, and proportion we use equality. And in ratio, when there is a relation between two numbers, and in terms of
quotient. It is known as ratio, and it is expressed by putting the division or colon between two numbers. An example is the ratio between 50 malarial patients and 158 normal persons, and the ratio is 1:3. Next is proportion. In proportion means to join two equal ratios by the sign of equality. कि जो हमने हमारे पास दो ratios हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं by the sign of equality, और इसके लिए हम equality का साइन भी यूज़ करते हैं और proportion का साइन भी यूज़ करते हैं. Next is the example. In proportion, when there are three values are given, then fourth value is calculated. For example, the 100 healthy sparrows are infected with malarial mosquitoes, then what will be the number of sparrows that will get malaria? We have to find that. And the second one is 20 sparrows were allowed to bite the mosquitoes, and 14 of them got the malaria. So in first ratio 14:20, 14 out of 20, या 14 जो थी उनको क्या हो गया था, मलेरिया हो गया था आउट ऑफ 20. एंड सेकेंड रेशियो में हमने एक्स को फाइंड आउट करने कि कितने जो हमारे पास हेल्दी स्पैरोज है उनको मलेरिया काज हुआ है आउट ऑफ 100. ठीक है. सो प्रोपोर्शन 14:20, proportion x ratio 100. So x divided by 100 is equal to 14/20. Then we will find the x by cross multiplying, and then we take the 20 towards opposite sign, and then 100 divided by 20 multiplied by 14, and then it the answer will be x is equal to 70. Today's try is learn the topic theory, law and principle plus data organization and data analysis. Thank you.